एटीडी कितना इन आवर? हम लोग को इवनिंग बैच रखना चाहिए था. So first part is historical cost. This one is your historical cost value. Historical cost means initial cost. This is substituting historical cost. What is that? I will discuss today. And exchange. What will happen in case of exchange? So we are discussing what is the cost or value of asset. First one is initial cost. Initially अगर हम recognize करें assets को, तो उसका value कैसे निकालेंगे? Cost क्या होगा? So that type may be of two types. One is acquired asset, other one is self-generated. या तो तुम खुद construct करो like a building, or you can acquire from someone directly like a plant, ready to use. Building, you have to construct that asset. ठीक है? So sir, how to compute the cost? As discussed in last class, all directly attributable cost. So all directly attributable cost means, suppose if you are constructing a building, क्या क्या cost होगा जो directly related with asset है? Material, तो cost of material सर add करना चाहिए, labor add करना चाहिए, expenses add करना चाहिए. फिर suppose करो तुमने कुछ material import किया या बाहर से मंगाया, तो import करने में बाहर से आएगा सर, तो क्या लगेगा? ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस. दैट मीन्स मटेरियल प्लस ट्रांसपोर्टेशन. फिर तुमने इंपोर्ट किया तो कस्टम ड्यूटी भी लगेगा, टैक्स भी लगेगा, तो वो भी सर ऐड होना चाहिए. ठीक है? तो ऑल डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस टू ब्रिंग द एसेट टू इट्स वर्किंग कंडीशन. तो मैंने क्या लिखा है देखो यहाँ पर, ऑल डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल cost of bringing the assets to its working condition for its intended use. Already been discussed in last class in detail. Don't worry. वो वीडियो तुम देखोगे तो पूरा अच्छा समझ में आएगा. मैं सिर्फ शॉर्ट में बता रहा हूँ. So I am talking about any expenditure which you have incurred till it's ready to use. All are part of your fixed assets. Examples: material, labor expenses plus taxes also. फिर मैं कुछ एग्जाम्पल पूछूंगा. ट्रायल रन, तुमने प्लांट मंगाया, अब उसको ट्रायल रन में रन कर रहा हूं. तो एक रिक्वेस्ट है कि अगर ओल्ड स्टूडेंट्स अगर प्रेजेंट, जो स्टूडेंट्स थे प्रेजेंट अगर फिक्स एसेट्स में, वो थोड़ा सा मैनेज कर रहे हैं ना. और इफ यू आर नॉट प्रेजेंट, वी ट्राई टू अकोमोडेट समवेयर. ये तो कुछ सेटिंग करके यहाँ 2-3 सीट आराम से हो जाएगा. हाँ, ट्रायल रन, whether trial run expenses is a part of fixed asset. मैंने प्लांट परचेज किया, प्लांट को मैं ट्रायल रन बेसिस पे रन कर रहा हूं. मतलब ये यूजेबल होगा कि नहीं, whether it is part of fixed asset or not. Yes or no? Why? क्यों? हाँ, to bring the asset into working condition. पता कैसे लगेगा कि वर्किंग कर रहा भी है कि नहीं? जब तक हम सेटिस्फाई नहीं हो तब तक कि वर्किंग कंडीशन में ये आएगा कि नहीं, तब का वो कॉस्ट है. सेम एग्जांपल और सिमिलर एग्जांपल, सेटअप कॉस्ट. मशीनरी को हमने मंगाया, अब उस मशीनरी को स्टैब्लिश करने के लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन नीचे बनाना, बेस बनाना. दैट बेस कॉस्ट. इंस्टॉलेशन कॉस्ट, all are part of fixed asset. क्यों? क्योंकि सर, unless until we will incur those expenses, the machine cannot be used for production. Machineries cannot be used for production. All expenses incurred to bring the asset into its working condition are part of its cost. Examples: purchase price, material, labor, overhead, fees, non-adjustable taxes, borrowing cost, all those things. So borrowing cost. What is borrowing cost? इंटरेस्ट. ये हमने शायद लास्ट क्लास में डिस्कस नहीं किया था.
तो मैं इसको थोड़ा सा इसके बारे में तुम्हें बताता हूँ, बोरोइंग कॉस्ट के बारे में। बोरोइंग कॉस्ट एक्चुअली एप्लीकेबल इन AS 16 एंड AS 16 is applicable in your group 2, बट थोड़ा सा हिंट तुम्हें जाना जरूरी है क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं है। वो ग्रुप 2 के स्टैंडर्ड्स भी कभी कभी 4 मार्क्स के ग्रुपों ने पूछे। You should also know at least basic standard which is applicable in group 2, like one of the standards is AS 16 borrowing. ठीक है, borrowing cost है कैसे? Borrowing cost means you just understand for time being interest cost means cost incurred to borrow fund. तो अगर मैंने suppose example I have took the loan of 1 lakh, loan is 1 lakh at the rate of 10% for purchase of an asset or for construction of an asset. So we are talking about some issues of borrowing cost which is applicable in AS 10 also. So interest, what is borrowing cost? The definition says the cost incurred to borrow the fund. So example क्या है sir? Interest cost is the borrowing cost. So we are talking about कि borrowing cost incurred to bring the assets in its working condition, that should be part of fixed. मैंने कहा कि 1 लाख मैंने borrow किया. To construct this fixed assets, it took around 15 months. This period is my 15 month period. Loan repaid after 24 months. Loan repaid after 24 months. Loan repaid after 24 months. And total 1 lakh is used for construction of fixtures. ये जो डेट है ये है construction of fixtures. Construction of fixtures. Which one? ये point है construction of fixtures. Now tell me, मेरा एसेट रेडी टू यूज कब हुआ सर? आफ्टर 15 months, not before 15 months. Loan taken here 1 lakh and total this 1 lakh has been used for construction. So what will be the value of asset? कितना होगा वैल्यू ऑफ? तो सर 1 लाख इनकर्ड, आप बोल रहे आपने जितना लोन लिया ऑल इनकर्ड फॉर एसेट, तो 1 लाख प्लस बोरोइंग कॉस्ट कितना? 2500, 12,500. So that is 1 lakh into 10% for how many months? 15 months divided by 12. 10% is for 12 months, so 15 months. So total is how much? 1,12,500. That means मैंने ऐड क्या किया सर? कॉस्ट इनकर्ड फॉर एसेट. ये लोन नहीं है, ये कॉस्ट इनकर्ड फॉर एसेट प्लस बोरोइंग कॉस्ट. दिस इज फॉर हाउ मेनी पीरियड्स? 9 months. सर इसको मैंने क्यों ऐड नहीं किया? Why interest cost for 9 months is not added with the fixed cost? क्यों नहीं किया? हाँ, incurred after it's ready to use, incurred after it's in the working condition. तो सर इसका क्या करेंगे इस 9 मंथ का? ईयर को चार्ज करते हैं. वेरी गुड.
So we can say for 15 months it has been added with the fixed asset. The balance month is charged to P&L. Means any expense incurred after asset is in working condition should be charged to प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और रिकॉग्नाइज एज एक्सपेंस. तो सर ये मैंने क्या किया, कैपिटलाइज किया. इसके साथ वैल्यू ऑफ एसेट. सेम एग्जांपल सपोज लिख लो, इसको नहीं लिखा जिन्होंने, क्योंकि मैं एग्जांपल चेंज करने वाला हूं. मैंने क्या क्या लिखा है, AS16 बोरोइंग कॉस्ट इज इंटरेस्ट कॉस्ट 1 लाख लोन 10% फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एसेट. Fifteen months is the period for construction of fixed asset and loan repaid after 24 months. So what would be the value of asset? So in the same example, what would be the value of assets if 80,000 is used for asset and other things remaining same? Means 15 months required for construction of an asset, but out of loan of 1 lakh, 80,000 was used for asset. What would be the value of asset? 93,000. So you can say, sir, value of assets would be the amount used for asset 80,000 plus 80,000 into 10% into 15 by 12. How much? 90? 93? 90,000. 90,000. Sir, balance का क्या होगा? 20,000 for 24 months and 20,000 for 15 months. Charge to P&L. तो सर जितना हमने एसेट्स के लिए यूज किया टिल इट्स वर्किंग कंडीशन, दैट इज ओनली पार्ट ऑफ एसेट्स. अदर थिंग्स आर चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस. So fixed assets are the value of assets which is being initially recognized, that is called historical cost, are the value incurred till its working condition. So this is only for historical cost. Acquired or self-constructed. In both the cases, whatever expenditure incurred, whether it's the borrowing costs, taxes, foreign exchange loss gain, which is very advanced, it is applicable in AS11. You don't require to read now. Second is applicable in your group 2. ठीक है, बट मैं इसका स्लाइडली बाद में तुम्हें बताऊंगा, नॉट नाउ. Reduced by something you got back from the government. So reduced by government grants, reduced by incidental income or trade discount. In last class we have did around 5 problems, I think. 5 किया था, कितना किया था? 3 to 4. 3 to 4 problems we have done. तो उसका एक जेरॉक्स तुम लोग ले लेना, करवा लेना.
Questions? So suppose you have incurred in the same example, we have incurred 80,000, but government has given a grant of 20,000 to us as a monetary grant. So your assets value reduced by 20,000. But that grant should be for assets. Suppose तुमने solar system लगाया, गवर्नमेंट बोले तुम सोलर सिस्टम लगाओगे तो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होगा, एनर्जी सेव होगा, तो गवर्नमेंट ने ग्रांट दिया, तो दैट ग्रांट शुड बी रिड्यूस फॉर एसेट्स और गिव रिसीव्ड फॉर एसेट्स, तो हैज टू बी रिड्यूस फ्रॉम दी एसेट्स. तो उस ग्रांट को हम क्या करेंगे, एसेट्स के वैल्यू से रिड्यूस कर देंगे. इन द सेम एग्जांपल, इफ 80,000 आई स्पेंड प्लस इंटरेस्ट and whatever grant received should be reduced from the. So these issues already been discussed in last class with certain problems, practical problems. So I will suggest you please look into the last class video, those who were not present in the last class. But you have understood कि sir, whatever expenditure we have incurred, that has to be added with the assets till its working condition. तो ये प्रॉब्लम एडवांस प्रॉब्लम है बहुत, इसमें कि बोरिंग कॉस्ट, एक्सचेंज रेट, एवरीथिंग इज देयर. तो ये एक्सचेंज रेट मैं तुम्हें बताने के बाद आई विल डिस्कस यू, नॉट टुडे. दिस एडवांस अंडरस्टैंडिंग मे बी आफ्टर सर्टेन मोर, व्हेन यू बिकम मोर मैच्योर, देन आई विल डिस्कस विद द फॉरेन एक्सचेंज रेट. टुडे विल डिस्कस द सेकंड पार्ट, रीवैल्यूएशन. इफ यू लुक इनटू, यहाँ पर तीन पार्ट है. वन इज हिस्टोरिकल कॉस्ट, दैट इज व्हाट इनिशियल कॉस्ट. So when you will purchase first time assets, what would be the value? If you construct it first time, what would be the value? So that is called historical cost, initial cost. But accounting allow us to change the value of historical cost. हमें ICAI परमिट करता है कि हमने जो वैल्यू रिकॉग्नाइज किया था उस वैल्यू को हम चेंज कर दें. That is called substituting your historical cost value. तो हेडिंग कर दो, substituting historical cost value, that is revaluation. हिस्टोरिकल कॉस्ट ने जो हमने कॉस्ट यहाँ रिकॉग्नाइज किया था उसे हम चेंज करने वाले हैं. तो हाउ वी विल चेंज, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ दैट? So that is called revaluation, means whatever value you have recognized earlier, you are revaluing that one. Suppose, मैं example दूंगा, don't worry. In this case, in the last case, my value is 90,000, let it be. After 1 year, let it be depreciation for first year is equal to 9,000. So value should be 81,000. I revalued that assets from 81,000 to 1 lakh. Revalue कर दिया. Sir 81 to 70 हो सकता है? हाँ हो सकता है. That is called downward revaluation. This is called upward revaluation. That means initially how much I have recognized? 90. 90 के बाद डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है, ये तो खाली एक वैल्यू है जो अकाउंटिंग में रिकॉग्नाइज किया जाता है, बट वैल्यू 90 था हमारे लिए. 90 become 81. Now 81 has changed to 1 lakh. It's called upward revaluation. मीन्स तुमने जो वैल्यू था बुक्स में उसको चेंज कर दिया टू द न्यू वैल्यू. दैट्स कॉल्ड रीवैल्यू. फिर से वैल्यू करना. तो ये हिस्टोरिकल कॉस्ट था. अब ये कौन सा हो गया सर? रीवैल्यूड कॉस्ट. ठीक है, तो इसी में मैं बात कर रहा हूं, फिर आऊंगा इस पे अगेन. Revaluation. How revaluation done in the organization? Generally, AS10 is silent about the method of revaluation. How you will do? So they think whenever you want to do the revaluation, you can do based on whole class of assets or selective assets. तो एक assets को भी revalue कर सकते हो if required.
और टोटल क्लास मीन्स व्हाट एवर सपोज जितने भी बिल्डिंग्स हैं कंपनी के पास, टोटल ग्रुप ऑफ बिल्डिंग इज बीइंग रीवैल्यूड एट ए टाइम, और अ पर्टिकुलर लैंड इज रीवैल्यूड, मैंने उसका वैल्यू को चेंज कर दिया गया। होता भी ऐसा, एक बिल्डिंग एक लैंड लिया गया था 10 years बिफोर फॉर रुपीज 10 लाख रुपीज इन नयापल्ली, आज का वैल्यू कितना होगा? 10 करोड़, 10 करोड़ वैल्यू हो गया नयापल्ली में, इसका वैल्यू सिर्फ 10 लाख था। तो अगर मेरा बैलेंस शीट होता तो मैं अपने बैलेंस शीट में वैल्यू दिखाऊं एज ऑन डेट, तो आई विल शो 10 लाख और 10 करोड़। बैलेंस शीट क्या होता है सर? वैल्यू एज ऑन डेट, तो वैल्यू तो 10 करोड़ है बट मैं दिखा रहा हूं 10 लाख, दैट मीन्स आई एम शोइंग अंडर वैल्यूड एसेट। So I can revalue my initial cost. I purchased for 10 lakh. It was value initial was 10 lakh. But now it become after 10 years it become 10 crore. So that is called revaluation of your asset. So there is aspiration is applicable to whole class of assets or selective assets to be revalued based on systematic basis. हाँ, तब सर कैसे कंप्यूट करेंगे? उन्होंने साइलेंट है बट बोला सिस्टमेटिक बेसिस, मतलब यू अपॉइंट सम एक्सपर्ट, मार्केट में वैल्यूअर्स आर देयर, रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स आर देयर। जैसे हम चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हमारा काम है अकाउंटिंग करना, वैसे ही बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जिनका काम है सिर्फ वैल्यू करना। वो आएंगे, मार्केट सर्वे करेंगे, वैल्यू करेंगे, सिमिलर प्रॉपर्टी देखेंगे, फेयर वैल्यू कंप्यूट करेंगे, क्या क्या है उस प्रॉपर्टी में, या बिल्डिंग है तो कितना पुराना बिल्डिंग है, उसका आज मार्केट में कितना प्राइस चेंज हो गया। तो दोज आर एक्सपर्ट्स। So they are saying on a systematic basis the value should not exceed the NRV of asset. So ICAI says AS10 your revaluation figure should not be net realizable value. सर वो क्या है? यहां पास आ जाओ फिर से। मैं बोल रहा हूं कि मेरा वैल्यू 1 लाख है। Now what is NRV? You might have read in your CPT, I think. And those who have not read in CPT, maybe in graduation. That is okay. वो सबको पता है। NRV is net realizable value. What is mean for NRV? तो इसका मतलब क्या है NRV का? So are you saying, sir, market value of assets minus expenses for sale? Is it? मैं बोल रहा हूँ मार्केट में जितना मुझे मिल जाए माइनस एक्सपेंसेस रिक्वायर्ड फॉर सेल। फॉर एग्जांपल मार्केट वैल्यू है सर 10 लाख लैंड का, बट उसको बेचने के लिए मुझे एक ब्रोकर को कमीशन देना पड़ेगा 1 लाख, तो माई एनआरवी इज नॉट 10 लाख। मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास का मार्केट वैल्यू है 10 लाख बट इसके लिए एक्सपेंसेस है 1 लाख का, 1 लाख। तो 10 lakh is not NRV. That would be wrong. My NRV would be 9 lakh. That means fair market value of that asset minus expenses for. तो बोलते कि revaluation should be, the value should not exceed your NRV. मैं बोल रहा हूँ कि मेरा वैल्यू 1 लाख है, मैं बोल रहा हूँ कि आज जाओ तो सोल्ड करके आओ। जैसे ही मैं सोल्ड करने गया मुझे इसका मिला कितना? सिर्फ 9 लाख। तो you will value that 90,000. 90,000. So you will revalue at 1 lakh or 90,000? 90,000, not at 1 lakh. So they are saying your revaluation figure should not exceed your net realizable value of. तभी करेक्ट वैल्यू आएगा ना, तो बैलेंस शीट में ओवर वैल्यू एसेट हो जाएगा, जो कि होना नहीं चाहिए। हम बोलते हैं वैल्यू एज ऑन डेट शुड नॉट एक्सीड मोर देन द कॉस्ट ऑफ द एसेट्स, मोर देन द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ एसेट, अदरवाइज वी विल बी violating the principle of accounting. That principle is prudence principle. याद है क्या है? Don't anticipate profit, anticipate losses. अगर प्रॉफिट मुझे लगता है कि 10 में यहां से हो जाएगा तभी मैं रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा, बट अगर मुझे लग रहा है कि 10,000 मेरा लॉस हो जाएगा इस 1 लाख में, तो आई हैव टू बुक। दैट मींस आई एम शोइंग एट 19,000।
ठीक है, तो वी नेवर शो आवर वैल्यू मोर देन द realizable value. So again, this is the applicable to whole class of assets or selective assets to be revalued based on systematic basis. The revalue should not exceed the NRV of the. तो revalue कैसे करेंगे, ये तो पार्ट एक्सपर्ट लोगों का, हमारा काम नहीं है. रिवैल्यूएशन किसका काम है? एक्सपर्ट्स का काम है, वैल्यूअर का काम है. हमारा काम क्या है सर? अकाउंटिंग करना. हाउ वी विल डू द अकाउंटिंग ऑफ रिवैल्यूएशन. Our work is to do the accounting of revaluation, not how to revalue. मैंने खाली हिंट दिया कि who will do the revaluation, how you will do the revaluation, but our main work is this one. First time revaluation. Initially we recognize at historical cost. Initially we recognize at historical cost. अब हम बोले उसके बाद हम फर्स्ट टाइम उसे रिवैल्यूएशन करने वाले. तो रिवैल्यूएशन में बी upward and downward. If it is upward, part of owner's equity, please write down, then I will give you the example. Upward means part of owner's equity, revaluation reserve. Downward, charge to income statement. Because nowadays in the company we don't say profit and loss account. It is what your profit and loss statement or statement of profit and loss. And इसको भी लिख लो हमारे notes में in a page, so I can explain both the things at a time. Revaluation first time. Upward part of owner's equity, that is called revaluation reserve. Downward, that is called charge to income statement, or you can say profit and loss account. After first time, if it is again revalued, what will happen? एक बार revalue किया, फिर से revalue कर दिया. Subsequent revaluation. So this is coming under the revaluation. Revaluation first time, there are two parts, upward and downward. Revaluation coming subsequent, there are two parts. Subsequent revaluation, if downward, adjusted against RR means revaluation reserve. Adjusted against RR means revaluation reserve. To the extent available and balance to income statement. If upward, means या तो downward होगा subsequent या upward होगा. If upward credited to income statement, you please write it down, then I will explain one by one. To neutralize the previous effect and the balance to revaluation. एक्स्ट्रा से पानी लेके बस ही होता मैं. डोंट ड्रिंक माई वाटर, अदरवाइज मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा तुम लोग को. ये फैंटा भी ऑन कर दे लो. ये स्लो कर दिया. ठीक है.
हम बात कर रहे हैं अबाउट द रिवैल्यूएशन। मैंने कहा देयर आर टू पार्ट्स, दिस इज द फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन। विल टेक द एग्जांपल। फर्स्ट टाइम देयर मे बी द अपवर्ड रिवैल्यूएशन और डाउनवर्ड। So let me take the example. The value of assets in the books, value of assets in the books is, let it be 1 lakh. First time it is upward revaluation. This 1 lakh become 1,20,000. The historical cost is 1 lakh initial value. As on date of revaluation, the value is 1 lakh. First time ये revalue हो रहा है, इससे पहले कभी revalue नहीं हुआ। This value become upward 1,20,000. तो हमने क्या लिखा? The upward revaluation transfer to owner's equity. मतलब it's part of shareholders fund under the balance sheet. मैं ये सब बातें बोल रहा हूँ, हम कंपनीज एक्ट में भी डिस्कस करेंगे, जब बैलेंस शीट का फॉर्मेट डिस्कस करेंगे। तो वो लैंग्वेज जब भी यूज कर रहा हूँ तो तुम्हारे उस समय इजी हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाओगे। तो पार्ट ऑफ कॉल्ड शेयर होल्डर फंड, so that is called revaluation reserve. So in this case, RR is how much? 20,000. ठीक है सर। So entry is what? In the books, what is accounting entry for revaluation reserve? हाँ, ऑलरेडी 1 लाख था बैलेंस शीट में, ऑलरेडी 1 लाख है, ऑलरेडी फिक्स्ड एसेट्स इज ऑफ 1 lakh in balance sheet. Now this 1 lakh has been changed into 1,20,000 upward revaluation on the same day. That means assets increased by how much? 20,000. Okay. So what is your entry? The assets account debited. Assets account debited how much? 1,20,000 or only 20? Only 20 क्योंकि सर ऑलरेडी 1 लाख तो है, एसेट्स ऑलरेडी डेबिट होके है। 1 लाख था सर, इसको हमने 1,20,000 के, दैट मीन्स वी आर जस्ट एडिंग 20,000। Assets account debited 20,000 to what? To revaluation reserve account. How much? 1,20,000. So assets has been increased at 20,000 this side. Other side of our balance sheet, which I am calling is the shareholders fund. Under shareholders fund, you are having a capital. Below capital, you are having R and S. Under R and S, you are having one reserve that is called revaluation reserve. That revaluation reserve is how much? 20,000. So both side tallies. यहाँ 20 इंक्रीज किया, यहाँ 20 इंक्रीज किया। सर यहाँ तो 1 लाख था, तो चलो मैं कैपिटल भी 1 लाख ले लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम है? बोथ साइड टैली। ठीक है। तो फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू वेयर? रिवैल्यूएशन रिजर्व। फर्स्ट टाइम तुमने क्या लिखा? फर्स्ट टाइम अपवर्ड रिवैल्यूएशन, इंक्रीज हो गया सर, पुराने वैल्यू से ये 1 लाख का 1,20,000 हो गया। फर्स्ट टाइम डाउनवर्ड, अपवर्ड से कितना हो गया? 1,20,000। अब मैं इसको बोल रहा हूं ये डाउनवर्ड फर्स्ट टाइम, इससे पहले कुछ नहीं हुआ था कभी। 1 लाख वैल्यू बिकम 70,000, downward revaluation. That is also called devaluation. But revaluation in both the sense we say, upward means increase हो गया, downward means reduce हो गया। Now what will be your entry? तुमने क्या लिखा? सर upward transfer to revaluation reserve. But first time मतलब ये कभी नहीं हुआ था, इससे पहले ये कभी नहीं हुआ। फर्स्ट टाइम ही ऐसा काम कर रहे हैं हम, बुक्स में वैल्यू चेंज कर रहे हैं।
क्या लिखा तुमने सर? चार्ज टू इनकम स्टेटमेंट। अर्लियर वी यूज्ड टू से चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नाउ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज कॉल्ड नाउ इनकम स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो एंट्री क्या होगा यहाँ पे? दो केसेस नहीं होगा, एक ही केस होगा। अब जो मैं बोल रहा हूं, सुनो सुनो, फर्स्ट टाइम है ये, इससे पहले कभी कोई रिवॉल्यूशन रिजर्व नहीं था। तो फर्स्ट टाइम का रिवॉल्यूशन रिजर्व आएगा कैसे? मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट टाइम मतलब इससे पहले कभी कुछ नहीं हुआ इस एसेट से रिलेटेड। फिर रिवॉल्यूशन रिजर्व आया कहां से? तब तो सब्सिक्वेंट वाला बात तुम बोल रहे हो। तो उसका एसेट ये एसेट से हमें मतलब क्या है? तो फिर हम फर्स्ट टाइम और सब्सिक्वेंट क्यों बात करते हैं? हम तो फिर ये सीधा बात करते हैं, विद देयर इज अ रिवॉल्यूशन रिजर्व इन द बुक्स ऑफ अकाउंट और नॉट। पहले वो देखो जाके जो तुम बात बोल रहे हो। मैंने तो ऐसा कहा नहीं ना, ये ईस्टर्न ने ऐसा कहा। मैं तो होता भी हूँ कौन कहने वाला, सारा कहने वाला तो आइशा ही है। तो डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन इज 70,000 फर्स्ट टाइम है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज द फर्स्ट टाइम। इससे पहले कभी ना इस एसेट रिलेटेड कुछ नहीं हुआ था। मैं बैलेंस शीट के बारे में, मैं सिर्फ एसेट्स के रिलेटेड डिस्कस कर रहा हूँ, इस एसेट से। इससे पहले कुछ नहीं था इसके अगेंस्ट। भले बैलेंस शीट में रिवैल्यूएशन रिजर्व हो, इसका नहीं था, बट इसके अगेंस्ट में रिवैल्यूएशन आज ही हो रहा है। इससे पहले कभी इसको छेड़ाछाड़ी नहीं किया गया था, ना इसको टच किया गया था, ना इसे मतलब इसको अप एंड डाउन किया गया था। ये जैसा वैल्यू चल रहा था वैसा का वैसा अकाउंट में चले आ रहा है। अब हम बोल रहे नहीं, अब हम इसको चेंज करेंगे। 1 लाख था, इसको 1,20,000 कर दिया फर्स्ट केस में। सेकंड केस में डाउनलोड कर दिया सर 70। सॉरी, वेरी गुड। दैट मीन्स सर एसेट्स हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 30,000। तो एसेट्स को क्रेडिट करेंगे, कोई कंफ्यूजन? तो टू एसेट करना ही करना है सर, बिकॉज एसेट हैज टू बी रिड्यूस, एसेट्स आर डेबिट बैलेंस, तो टू एसेट अकाउंट 30,000। तुमने लिखा क्या है नोट्स में? चार्ज टू इनकम स्टेटमेंट। तो यू कैन से सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड कितना? 30,000 और इनकम स्टेटमेंट अकाउंट डेबिटेड 30,000। So this is the first time. Subsequent. अब सब्सिक्वेंट में दो केसेस हो सकते हैं और टू कॉम्बिनेशन, यानी फोर कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं। लेट्स सी क्या क्या हो सकता है। तो सब्सिक्वेंट में फर्स्ट टाइम अपवर्ड, पहले हमने इसे अपवर्ड किया, 1 लाख का 1,20,000 कर दिया। अब सब्सिक्वेंटली क्या कर रहे हैं हम इसे? सेकेंड टाइम अगेन अपवर्ड। चलो मैं पहले अपवर्ड इजी इजी पहले कर लेता हूँ। सर अपवर्ड बिकम अगेन मोर अपवर्ड। हम यहाँ पास, मैं इसे शॉर्ट में नहीं लिखा, बट इसका मीनिंग क्या है वही तो मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, सेकंड टाइम भी अपवर्ड, सिंपल वाला केस। 1,20,000 बिकम 1,40,000। 1 लाख को 1,20,000 किया, फिर से एक साल के बाद इसे 1,20,000 को 1,40,000 कर, तो क्या होगा सर एंट्री? सेम सर, एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू रिवॉल्यूशन रिजर्व अकाउंट। मींस फर्स्ट टाइम अपवर्ड रिवॉल्यूशन, सेकंड टाइम आल्सो अपवर्ड रिवॉल्यूशन। तो कोई कंफ्यूजन? मैं सेकंड भी वही बात कर रहा हूं। फर्स्ट टाइम डाउनवर्ड, सेकंड टाइम और सब्सिक्वेंट टाइम सेम डाउनवर्ड।
सेकंड टाइम भी डाउनवर्ड हुआ। फर्स्ट टाइम भी मैंने 1 लाख से 70 कर दिया, अब सब्सिक्वेंटली 70 से 60 कर दिया। तो क्या होगा इंटरेस्ट? सेम सर, चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस, चार्ज टू पी। मतलब यहाँ एंट्री आपने क्या सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड 30,000 टू एसेट 30,000, और मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ मेरा क्या हो गया, 70 बिकम 60, एंट्री क्या होगा? P&L account debited to asset, how much? 10,000. Correct. So 70 has been reduced to 60,000. So 10,000 entry pass. First time downward, second time down. तो बहुत easy है सर. कोई confusion किसी को भी? Any confusion to anyone? Last bench, पूरा last corner में. ये लग रहा नहीं कि उसका ध्यान यहाँ पर है. Pay attention here. Any doubt if you have, please ask me. हम यही तो बताते हैं कि क्या हो सकता है. अभी तो इजी है, इसलिए सेम ही आ रहा है. सेम आ सकता है, जो सेम होगा सेम होगा, हम क्या करेंगे उसको. बट वी आर जस्ट डिस्कसिंग व्हाट विल हैपन. बट अगर मैं अब यहां बोलूं कि सर फर्स्ट टाइम अपवर्ड, फर्स्ट टाइम अपवर्ड, सब्सिक्वेंट टाइम और सब्सिक्वेंटली डाउनवर्ड, मैंने 4 कंडीशन मैंने कहा है. ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये मैं बात कर रहा हूं 3 के बारे में. फर्स्ट टाइम अपवर्ड, सब्सिक्वेंटली डाउनवर्ड. मीन्स फर्स्ट टाइम सर आपने क्या किया, 1 लाख बिकम 1,20,000 अपवर्ड, सब्सिक्वेंटली डाउनवर्ड. दैट मीन्स मैं एग्जांपल ले रहा हूं, यहां पास 1,20,000 वैल्यू था सर मेरे को, इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू न्यू वैल्यू, revalue to 1,10,000. एग्जाम्पल मैं चेंज करते जाऊंगा. फॉर एग्जाम्पल ऑल्टरनेटिव ए, the value was 1,20,000 which was revalued from 1 lakh to 1,20,000. Now this 1,20,000 value has been changed to revalue to 1,10,000. What will be your entry? The P&L account debited to asset, revaluation reserve account debited to asset. ठीक है, चलो RR account debited to asset कितना सर, 10,000, 10,000. कोई कंफ्यूजन? तो 1,20,000 का वैल्यू था, 1,20,000 बिकम 1,10,000. एसेट्स हैज बीन रिड्यूस्ड 10,000. उसके अगेंस्ट में सर आपने बताया था डाउनवर्ड अगर होगा तो हम कहां कर रहे थे, प्रॉफिट एंड लॉस टू एसेट कर रहे थे. तो यहां हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिबिटेड टू एसेट क्यों नहीं किया? क्यों? रिवैल्यूएशन रिजर्व ऑलरेडी बैलेंस है. तो मैं फिर से रिपीट करूंगा सर, इफ डाउनवर्ड एडजस्टेड अगेंस्ट आरआर टू द एक्सटेंट अवेलेबल. क्या लिखा है? अगर मेरे पास आरआर है उस एसेट्स के लिए, इसमें देखो मेरे पास आरआर था 20,000. मैं इसी एग्जांपल को रिपीट कर रहा हूं. फर्स्ट टाइम अपवर्ड रिवैल्यूएशन, फर्स्ट टाइम अपवर्ड, सब्सिक्वेंट डाउनवर्ड. तो ये अपवर्ड हुआ फिर डाउनवर्ड हुआ. अपवर्ड में कितना था मेरे पास, 20 था. That means in my books of account there is a 20,000 revaluation reserve is there. मैंने तुम्हें क्या बताया, if downward adjusted against RR to the extent available, उस एसेट से रिलेटेड जितना रिवैल्यूएशन रिजर्व तुम्हारे बैलेंस शीट में है उसको पहले एडजस्ट करो, एंड द बैलेंस टू इनकम स्टेट. उसके बाद भी कुछ बच जाए, चार्ज टू P&L अकाउंट.
दैट मीन्स सर यहाँ पर रिवैल्यूएशन रिजर्व हाउ मच इन द बुक्स 20,000. So first I have to adjust against revaluation reserve. The balance I have to adjust against ये. बट बैलेंस तो बचा नहीं है. बैलेंस बचा क्या? नहीं बचा. मैं सेकंड एग्जांपल ले रहा हूँ. बी सर 1,20,000 बट रीवैल्यू टू 60,000. वैल्यू वाज 1,20,000. इट्स रीवैल्यू टू 60. मतलब फर्स्ट टाइम इट वाज अपवर्ड जो हुआ था. Subsequently it become downward but 60. मैंने क्या लिखा है? First adjust against revaluation reserve. And in my books I have not changed the value of revaluation. Whatever it was, it remains 20,000. मैंने चेंज नहीं किया. तुम्हारे मन में क्वेश्चन आता होगा सर अगर वैल्यू 20 नहीं होता, आपने रिवैल्यूएशन रिजर्व को कहीं एडजस्ट कर दिया, वैल्यू 18 होता तो क्या होगा? मैं उस पर भी बताऊंगा. अभी हम एज्यूम कर रहे हैं कि आई हैव नॉट चेंज माई रिवैल्यूएशन रिजर्व. इट वाज 20, discontinuing in the balance sheet as it is 20,000. पानी वापस दो. फैन बंद करवा रहे. ठंडा लग रहा है तुम लोग को? बंद कर दो भाई. देखो मुझे पसीना आ रहा है. ठीक. तुम लोग तो बैठ के सुन रहे हो ना, मुझे बोलना ही पड़ रहा है. ठीक है. तो सर यहाँ एंट्री क्या होगा? रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड. कितना? 20,000. वाई 20? वाई ना, आपने तो सर चेंज किया कितना? 1,20,000 को 60 का चेंज किया आपने. हाँ. टू द एक्सटेंट अवेलेबल. अवेलेबल कितना है बुक्स में सर? 20,000 अवेलेबल है. तो रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट 20,000. बट सर एसेट्स को तो रिड्यूस करना है. एसेट्स अगर 60 से कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं चेंज कर देता हूँ फिगर. 60 में कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन नहीं है. तो एसेट्स अकाउंट 1,20,000 था, इट हैज बीन रिड्यूस टू 60,000. मतलब 60,000 डाउन करना है. टू एसेट अकाउंट 60,000. बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड 40,000. तो टू द एक्सटेंट ऑफ बैलेंस अवेलेबल फर्स्ट एडजस्ट अगेंस्ट रिवैल्यूएशन. क्योंकि हमने पहले से अपवर्ड किया तो आरआर में रखा था. हम बोले जो पहले रखा था उसको पहले चेंज करो. पहले आरआर में था उसको चेंज करके आरआर से हटाओ. ठीक है ना? ये थोड़ा सा फुलनेस मिलेगा. एंड बैलेंस चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस. दैट मीन्स अगर डाउनवर्ड हो रहा था तो हम क्या कर रहे थे? देखो जब डाउनवर्ड हो रहा था हम क्या कर रहे थे? पीएल टू एसेट कर रहे थे. तो यहाँ भी पीएल टू एसेट करना चाहिए. पर अगर वो बोल रहे हैं जो तुमने पहले किया था उसको पहले एडजस्ट कर दो. तो पहले तुमने आरआर किया था उतना पहले एडजस्ट कर दो, जो बैलेंस बचा उसे पीएल में ट्रांसफर कर. सेम क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूं. सी वैल्यू ऑफ एसेट इज एसेट वैल्यू इज 1,15,000. आरआर वैल्यू प्लीज गिव कॉन्सेंट्रेशन ऑन द बोर्ड. आउटसाइडर में कोई भी जा रहे आ रहे वहां कॉन्सेंट्रेशन तुम लोग को नहीं देना. एसेट अकाउंट 1,15,000. आरआर इन द बुक्स 18,000. It has been revalued to 75,000.
कितना? तो डिवेल्यूशन कितना हो गया? 1,15,000 माइनस 75। तो टू एसेट्स में कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो कुछ भी नहीं आएगा। टू एसेट्स अकाउंट लिख के आएंगे तो भी हाफ मार्क तो मिल ही जाएगा एग्जाम। कितना आने वाला है ये? 40,000। ठीक है, दैट मीन एसेट्स हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 1,15,000 टू 75, तो 40,000 हैज बीन रिड्यूस्ड। तो बोला टू द एक्सटेंड हमने पहले ही रखा हुआ था और जितना अवेलेबल है, मैंने किया था 20, बट अवेलेबल कितना है? 18 है, और आज का वैल्यू कितना? 1,15,000। तो फर्स्ट में कितना एडजस्ट कर सकता हूँ? सिर्फ 18, नॉट 20, जितना अवेलेबल है बुक्स में। तो 2,000 क्या किया मैंने? 2,000 कहीं किसी और के अगेंस्ट में इसको चार्ज कर दिया होगा, हो सकता है। मैंने डेप्रिसिएशन के अगेंस्ट में से चार्ज कर दिया होगा, हो सकता है। सब एक ट्रीटमेंट है जो अभी मैंने बताया नहीं। तो टू द एक्सटेंट अवेलेबल, नॉट टू द एक्सटेंट क्रिएटेड। वर्डिंग इज टू द एक्सटेंट अवेलेबल, नॉट टू द एक्सटेंट क्रिएटेड। क्रिएट तो मैंने 20 किया था, 20 रिवर्स नहीं करना, जितना अभी बुक्स में है। बुक्स में कितना है? 18 है। तो आर अकाउंट डेबिटेड 18,000, बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना? 22। तो टू द एक्सटेंट अवेलेबल, हम नेक्स्ट जा रहे हैं फोर्थ केस में। फर्स्ट टाइम डाउनवर्ड अपोजिट ऑफ थर्ड केस एंड subsequently upward। फर्स्ट टाइम डाउनवर्ड किया हमने एंड सब्सिक्वेंटली क्या किया? अपवर्ड। तो मैं एग्जांपल्स लेता हूं। ए, मेरे फर्स्ट डाउनवर्ड में कितना था? यहाँ वैल्यू 70 था। तो फर्स्ट वाला मैं पहले इसे तुम्हें समझा देता हूँ। सर ए, एसेट वैल्यू वाज इन दी बुक 70,000। फर्स्ट टाइम डाउनवर्ड हुआ था, अब अपवर्ड हो रहा है। इट इज रीवैल्यूड टू लेट इट बी 90,000। फर्स्ट टाइम डाउनवर्ड हुआ था सर, अब ये अपवर्ड हो रहा है 90। इनिशियली इसे हमने डाउनवर्ड करके रखा था, बट ये अपवर्ड हो गया। फिर से रिवैल्यू किया, इसका वैल्यू बढ़ गया मार्केट में। हो सकता है, पॉसिबल। अब एंट्री बताओ क्या होगा। देख लो पहले क्या लिखा तुमने लिखा कि इफ अपवर्ड क्रेडिटेड टू इनकम स्टेटमेंट टू न्यूट्रलाइज द प्रीवियस इफेक्ट इन द बैलेंस वाला। मतलब जितना तुमने पीएल में पहले चार्ज किया है उसको पहले ठीक कर दो। इफ अगर कुछ बैलेंस बचे टू आ रहा, क्योंकि होना क्या चाहिए था सर, ये अपवर्ड हो रहा है, दैट मीन्स होना क्या चाहिए? आर आर टू एस एस टू आर आर। अपवर्ड में हमने पढ़ा ना, अरे यहाँ पढ़ा ना हमने, अपवर्ड में क्या हो रहा है सर? एस एस टू आर आर। तो होना चाहिए सर एस एस टू आर आर, सीधा सा बात है। 70 का 90 हो गया, दैट मीन्स 20 इंक्रीज, दैट मीन्स एसेट अकाउंट डेबिटेड 20, आर आर अकाउंट डेबिटेड 20। ये तो सिंपल है सर, होना चाहिए। बट ये सब्सिक्वेंट वाला केस है। फर्स्ट टाइम आपने कहां चार्ज किया था? जब डाउनवर्ड था, पीएल। मतलब पीएल हमने जबरदस्ती रिड्यूस कर दिया। तो बोले एक काम करो, पहले पीएल को न्यूट्रलाइज करो। जो तुमने बेकार में एक चार्ज किया था डाउनवर्ड के समय में, अब ये अपवर्ड हो गया। तो टू द एक्सटेंट यू हैव चार्ज टू पीएल, प्लीज न्यूट्रलाइज। न्यूट्रलाइज मीन्स उसको ठीक कर। तो कितना हमने चार्ज किया था प्रीवियसली? 30। तो टू द एक्सटेंट ऑफ 30 वी कैन चेंज इनटू द पीएनएल अकाउंट। यहाँ कितना आ रहा है? सिर्फ 20। तो सर यहाँ तो सिंपल सा बात है, मैं क्या करूंगा? एसेट तो इंक्रीज होना ही होना है। एसेट्स अकाउंट डेबिटेड 20,000 टू
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 20। ठीक है। केस नंबर 2 बी, सर एसेट 70 था, लेट इट बी, इट हैज बीन रीवैल्यूड टू 130,000, 1,30,000, 70 become 1,30,000। 32 PL, 32 रिवैल्यूशन, दैट मीन्स टोटल इंक्रीज कितना है 60,000। दैट मीन्स बाकी तो कंफ्यूजन है ही नहीं सर, एसेट्स अकाउंट डेबिटेड 60,000, देयर इज नो सच कंफ्यूजन, ऐसे इंक्रीज करना ही करना है 60,000। तो मैं लिखूं ना कि assets account debited, any doubt you have, please you ask me, you can ask me in English, you can ask me in Hindi, even you can ask me Odia। वो बात अलग है कि मेरा उड़िया खराब है। तो assets account debited 60,000, बट मुंह उड़िया कहीं पालूची, ठीक है तुमने ऐसा, इसलिए मैं बोलता नहीं। assets account debited 60,000 टू PL कितना 30, क्यों पूरा 60 क्यों नहीं किया? क्योंकि सर आपने पहले 30 ही चार्ज किया था इनिशियली, आपने 60 नहीं किया था। तो टू द एक्सटेंट यू हैव बीन चार्ज टू P&L टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट, मतलब पहले डाउनवर्ड था तो हमने PL को रिड्यूस कर दिया, मेरा प्रॉफिट रिड्यूस कर दिया, तो वापस में प्रॉफिट इंक्रीज कर रहा हूँ, क्रेडिट कर रहा हूँ। तो टू P&L अकाउंट 30,000, टू RR अकाउंट 30,000। ठीक है, तो हैव यू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन? फर्स्ट टाइम सर रिवैल्यूएशन इज द अपवर्ड होने से, डाउनवर्ड होने से P&L अकाउंट, बट अगर सब्सिक्वेंटली डाउनवर्ड हो तो पहले हम क्या करेंगे, पहले RR को खोजेंगे, अगर है तो उसको चार्ज करेंगे, RR नहीं मिलेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस। जो होना चाहिए था सर डाउनवर्ड में PL को होना चाहिए ना, यहाँ ही PL को ही हो रहा है, बट बिफोर लुकिंग इनटू PL वी टू लुक इनटू RR। यहाँ पर भी हम वही करने वाले हैं, हम बोले पहले हमने क्या किया था, PL किया था, तो पहले PL को एडजस्ट करो देन टू, ठीक है। और एक चीज मैं बता दे रहा हूँ सर, ऐसा हुआ एसेट्स डिस्पोज्ड, ये समझ में आ गया तुम लोग को? तो इसमें कोई कंफ्यूजन एनीवन? साथ में नोट्स लिखते जाओ, वेट मत करो एंड तक, तो फिर मुझे वेट करना पड़ेगा तुम्हारे लिए। लिख लिया ना सर, एग्जाम्पल्स एवरीथिंग, ऑल ऑफ यू। मैं बता रहा हूं कि व्हाट विल हैपन एट द एंड, मीन्स ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व, क्योंकि मैं साथ में बता देता हूं यहाँ पर ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व। दो चीजें, वन ड्यूरिंग द यूज ऑफ एसेट, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ यूज ऑफ एसेट, और एट द टाइम ऑफ यूज ऑफ एसेट, ऐसा समझो, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ यूज ऑफ द एसेट, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ यूज ऑफ द एसेट। मैं फिर से लिख रहा हूँ, लैंग्वेज चेंज कर देता हूँ, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ यूज ऑफ द एसेट,
एक तो हमने ट्रीटमेंट देखा, अगर उसका वैल्यू चेंज हो रहा है तब क्या हो रहा है सर? अगर कुछ चेंज नहीं हो, 1 लाख बिकम 1,20,000 और वो चलते आ रहा है, क्या करेंगे सर? उस रिवैल्यूएशन रिजर्व को क्या बैलेंस शीट में एज इट इज कंटिन्यू करते रहेंगे 20 देन मैं फिर से एग्जांपल लिख रहा हूं। जनरल रिजर्व सर, एसएस वैल्यू था 1 लाख में 20 इंक्रीज हो गया, एसएस वैल्यू बिकम 1,20,000। आर 20,000। दिस इज बैलेंस शीट फर्स्ट ईयर, जब रिवैल्यूएशन हुआ तब। Now what you will do with this 20,000? You will continue as it is. Next year what you will do? Suppose second year. This is first year at the end. At the end I have revalued. I have transferred revaluation result 20,000 after depreciation. This balance sheet is after depreciation. The balance sheet second year asset is 1,20,000. Let it be life is. Let it be. Life is 10 years. Depreciation SLM method 12,000. Value is how much? 1,08,000. रिवैल्यूएशन रिजर्व का क्या करेंगे सर? क्या 20 साथ में एज इट इज रखेंगे? एनीथिंग जो मन में आ रहा बताओ, क्या करेंगे सर? एज 20 रखेंगे या इसको चेंज करेंगे? माय क्वेश्चन, चेंज करेंगे। कितना चेंज? 0 कर देंगे? कर सकते हैं 0, तुम चाहो तो, ऐसा बात नहीं कर सकते। बट अगेन उन्होंने बहुत स्पेसिफिकली अबाउट नहीं कहा ट्रीटमेंट, बट जनरल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग वी से ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ यूज ऑफ द एसेट्स आर ट्रांसफर टू profit and loss account, or which is called now income statement, in proportion of depreciation. In proportion of depreciation. During the period of use of the asset, are transferred to profit and loss account in proportion of depreciation. तो सर था कितना? 20। मैं इसका लॉजिक भी तुम्हें बता देता हूँ। Had it been asset remains 1 lakh. Had it been asset जितना था उतना ही रहता। Had it been asset value remains same 1 lakh, जितना था उतना ही रहता। तो सर डेप्रिसिएशन कितना आता? अगर लाइफ इज 10 years 10,000 एसएलएम में, मैंने कहा ना लाइफ 10 years, मैंने कहा लाइफ कितना है? 10 years। तो ये कितना होता सर? 90। तो तुम इंक्रीज देख पा रहे हो सर? इंस्टेड ऑफ 10,000 यू हैव चार्ज डेप्रिसिएशन कितना? 12,000। तो अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊं, अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस बनाता, मैं यहाँ लिख देता हूँ खाली डेप्रिसिएशन कितना है सर यहाँ पर? 12,000। और यहाँ डेप्रिसिएशन कितना है? इसका मतलब तुम्हें क्या लग रहा है कि पीएल में 2,000 यहाँ एक्स्ट्रा चार्ज हुआ, यहाँ बस 12,000। दैट मीन्स इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 12,000 इज एक्स्ट्रा चार्ज और नॉट 2,000। इंस्टेड ऑफ 10,000 इट हैज बीन चार्ज हाउ मच? 12,000। तो वो यही बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं जितना तुम्हारा एक्स्ट्रा हो गया बिकॉज ऑफ रिवैल्यूएशन उतना ट्रांसफर कर दो। इस केस में कितना ट्रांसफर होगा? तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ यूज ऑफ द एसेट आर ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन प्रोपोर्शन ऑफ डेप्रिसिएशन। अब यहाँ प्रोपोर्शन क्या है डेप्रिसिएशन का सर? 10%, 10%, 10%।
प्रोपोर्शन क्या है, 10 ईयर्स है ना, 12,000 12,000 12,000 12,000 आएगा, मतलब 1:1:1:1:1:1 मीन्स 1/10, और यू कैन से 10%. And if SLM method I will follow each year for the next 10 years, what is your depreciation? Same, 12,000 12,000 12,000 1/10 1/10 1/10 1/10. That means RR भी 1/10 1/10 1/10 ट्रांसफर कर सकते हैं. तो RR यहाँ कितना हो जाएगा, तो सर इट इज क्रेडिटेड टू पी एंड एल अकाउंट, क्रेडिटेड टू पी एंड एल कितना कितना, अरे इन प्रोपोर्शन डेप्रिसिएशन, प्रोपोर्शन क्या है 1/10 और 10% और 10% किसका 20,000 का. तो एंट्री क्या हो गया सर, RR अकाउंट डेबिटेड कितना 2,000 टू टू PL कितना 2,000. दैट मीन्स बैलेंस कितना बचा बुक्स में 20,000 18,000. तो सिंपल लॉजिक, बोले तुमने बढ़ाया उधर से इसलिए डेप्रिसिएशन इंक्रीज हो गया अननेसेसरी, उसको इफेक्ट को ठीक करो. अगर आ रहा है तो उसको स्लोली स्लोली पीएल में क्रिएट करो, वन साइड डेबिट करो. तो इफ यू लुक इनटू, अगर मैं पीएल अकाउंट बनाता तो सर डेप्रिसिएशन कितना आता 12,000 और क्रेडिट साइड में आधार कितना आता 2,000. नेट इफेक्ट कितना है डेबिट क्रेडिट मिला के 10,000. होना कितना चाहिए था 10,000. अंडरस्टूड. It should be 10 if there is no revaluation, but it's 12. Why? Because of revaluation. तो एक्स्ट्रा हो गया, तो बोले उस एक्स्ट्रा को इन प्रोपोर्शन ऑफ आरआर को तुम ट्रांसफर करते रहो धीरे धीरे, वेयर प्रॉफिट एंड लॉस. So during the period of use of the asset, RR transfer to profit and loss account in proportion of depreciation. Any doubt? तो चेंज कितना हो गया, देखो चेंज क्या हो गया, आरआर आरआर 18 हो गया. तो ऐसा नहीं कि सर आरआर सेम कंटिन्यू होता रहेगा, आरआर चेंज भी हो सकता है. कंपनी चाहे तो ट्रांसफर नहीं भी कर सके, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने स्पेसिफिकली कहा नहीं कि यू हैव टू ट्रांसफर, बट जनरल अकाउंटिंग पॉलिसी वी शुड ट्रांसफर और एडजस्ट आवर आरआर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. हाँ एकदम, उतना ही एक्स्ट्रा आ जाता है ना, रेट के हिसाब से एक्स्ट्रा आया था, उसी रेट पे हमारा ट्रांसफर कर इन प्रोपोर्शन ऑफ डेप्रिसिएशन सेम आएगा तुम्हारा. अब पॉइंट नंबर बी, क्योंकि मेरा ये सॉफ्ट फाइल का नीचे खत्म है, ऊपर सेकंड आई एम गोइंग बैक अबव. ए इज ओवर. ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ यूज ऑफ द एसेट्स आर ट्रांसफर टू पी&एल अकाउंट इन प्रोपोर्शन ऑफ डेप्रिसिएशन. सेकंड पॉइंट बी लिख लिया इसको, ये एंट्री लिख लिया, ये क्रेडिटेड टू पी&एल अकाउंट एंड एंट्री फॉर आर अकाउंट डेबिटेड टू पी&एल अकाउंट. Don't use diaries. कॉलेज की तरह डायरी लेके मत आओ. डोंट टेक अदरवाइज, एग्जामिनेशन में यही हैबिट बन जाएगा. प्लीज न्यू स्टूडेंट्स के लिए मैं बोल रहा हूं, अपने ओल्ड हैबिट्स को जरा हटा दो. जितना भी ओल्ड हैबिट्स माइंड में है ग्रेजुएशन वाला,
+2 वाला सीपीटी वाला वो राउंड राउंड वाला जमाना गया, ये बहुत अच्छा लगता था। नहीं पढ़ के जाने से भी अच्छा फ्रेंड मिल जाए तो पास हो सकते हो, या अच्छा फ्रेंड मिल भी जाएगा तो वो उस स्पीड में तुम्हारे लिए वेट नहीं करेगा, मुझे पक्का पता अगर उसे पास होना होगा तो। और डायरीज आर नॉट अलाउड एट ऑल। प्लीज ब्रिंग योर कैलकुलेटर एंड आई प्रेफर रूल नोटबुक। एग्जाम में तुम्हें रूल मिलता है तो अभी से वो प्रैक्टिस करो, ना कि ब्लैंक नोटबुक। जो अच्छा लगता है करने में, मुझे भी अच्छा लगता है यहाँ करने में, बट यू शुड फॉलो द रूल नोट। ठीक है, दीज आर द फ्यू थिंग्स, बट अभी से प्रैक्टिस करो, बाद में बहुत काम आएगा। ठीक है, तो पॉइंट नंबर बी, एक बार ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ यूज। अब मैं बी ट्रीटमेंट बता रहा हूं। ट्रीटमेंट ऑफ रिवोल्यूशन रिजर्व आफ्टर द डिस्पोजल ऑफ, एसेट। डिस्पोजल मीन्स सेल, डिस्कार्डेड, डिमोलिश, वट एवर यू कैन। बहुत सारे वर्ड है। डिमोलिश हो गया अपने आप ही, खत्म हो गया, बट रिवोल्यूशन रिजर्व है हमारे पास, और हमने सेल कर दिया, अभी भी रिवोल्यूशन रिजर्व है हमारे, क्योंकि हमने पीएल को ट्रांसफर नहीं किया ना। सपोज नेक्स्ट ईयर मैंने सेल कर दिया, तो आई एम हैविंग 18,000 ऑफ रिवोल्यूशन रिजर्व। तो आफ्टर द डिस्पोजल ऑफ एसेट्स व्हाट यू विल डू, और एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल, आफ्टर द डिस्पोजल ऑफ एसेट्स, एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल, क्या करोगे बताओ, क्या लॉजिक लगता है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। मैं बता देता हूँ। इफ देयर इज लॉस ऑन डिस्पोजल, लिख देता हूँ, इफ देयर इज लॉस ऑन डिस्पोजल, adjust loss against RR account. B का 1, if there is a loss on disposal, adjust your loss against first RR account to the extent available, to the extent available for the asset। उसी एसेट के बारे में बात करें, अगर किसी और एसेट का RR हमें मतलब नहीं है, सिर्फ स्पेसिफिक टू एसेट्स वी आर टॉकिंग अबाउट, नॉट स्पेसिफिक टू ऑल अदर RR अकाउंट। टू द एक्सटेंट अवेलेबल, मैं लिख भी देता हूँ, टू द एक्सटेंट अवेलेबल। सपोज लेट इट बी द एग्जांपल, प्रीवियस केस कितना वैल्यू था एसेट्स का वैल्यू सेकंड ईयर के एंड में 1,08,000, वैल्यू वाज 1,08,000 से, आरआर कितना था, आरआर था 18,000। सपोज सोल्ड, दिस एसेट हैज बीन सोल्ड फॉर 70,000, एंट्री बताओ। एसेट्स आर सोल्ड फॉर 70,000, एंट्री बोलो। सर बाकी छोड़ दो, मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हें हाफ मार्क 1 मार्क करके 40 आ सकता है। तो सर एसेट्स वैल्यू कितना, 1,08,000, मतलब एसेट्स को क्रेडिट करके हटाना है बुक से, एसेट्स अकाउंट टू एसेट अकाउंट कितना 1,08,000, सेल हो गया ना, ये तो हटाने हटाना। कितना में सोल्ड हुआ सर, 70 में, तो बैंक से पैसा कितना आने वाला है 70, इतना भी लिख के आओगे तो 1 मार्क तो आ ही जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिटेड 70 टू एसेट अकाउंट 1,08,000। लॉस कितना हो रहा है सर, लॉस है 38,000 का, तो मतलब लॉस का एडजस्ट करो फर्स्ट आरआर में, तो आरआर कितना है सर 18, सो आरआर अकाउंट डेबिटेड 18,000। अब और कुछ आरआर है नहीं सर, जितना तक कर लिया, लॉस है टोटल 38, बैलेंस कहाँ जाएगा रियल में, तो लॉस ऑन
सेल ऑब्लिक P&L डायरेक्टली भी ट्रांसफर कर सकते हैं या इनडायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हैं। लॉस ऑन सेल अकाउंट डेबिटेड कितना 20,000, सो टोटल लॉस 38,000 था सर। फर्स्ट एडजस्टेड अगेंस्ट आर बैलेंस एडजस्टेड अगेंस्ट लॉस ऑन सेल पॉइंट। पॉइंट नंबर 2, नो लॉस, then balance of RR transfer to general reserve account, transfer to general reserve account. No loss, balance of RR transfer to general reserve account. अगर तुम्हारा लॉस नहीं होता है तो जितना आधार बचा ट्रांसफर कर दो। तो सर अगर ये केस में लॉस नहीं होता तो मैं कितना में सोल्ड करता, लिख लिया था ऊपर वाला तुम लोगों ने, कितना में सोल्ड करता मैं 1,08,000 में। तो एंट्री क्या होता, बैंक अकाउंट डेबिटेड 1,08,000 टू एसेट अकाउंट 1,08,000 बी RR अकाउंट डेबिटेड क्रिएट हो गया था हमारे बुक्स में कितना 18,000 टू जनरल रिजर्व अकाउंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये डिस्पोजल वाला जो मैंने कहा। तो सारा ही इंपॉर्टेंट है बट ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मतलब तुम्हें याद रखना है कि जिसका एसेट सोल्ड है कि उसके अगेंस्ट में अगर आ रहा है, कोई भी तुम अकाउंट्स कर रहे हो, फाइनल अकाउंट कर रहे हो, कैश फ्लो कर रहे हो, बैलेंस शीट कर रहे हो, उसे ले जाके आधार में डालना है, मार्क्स है उसके ऊपर। तुम्हें थोड़ी बोलेंगे कि ऐसा करना है, अगर दिया है तो यू शुड अंडरस्टैंड कि ये करना है। ठीक है, जीएन में क्यों करेंगे, क्योंकि आरआर क्या है, हम बोल रहे हैं कि हमारा 1 लाख का 1,20,000 हो गया था। जिनका आर्टिकल सी पे जिन्हें जाना जा सकते हैं, एक मिनट तुम लोग को जाना है? हाँ जा सकते। इनका तो आईटीडी है, तुम्हारा भी आईटीडी है क्या? आर्टिकल सी पे तो आर्टिकल सी पे ना आईटीडी है, आर्टिकल सी पे ना, तो 10:30 तक थोड़ा कर लो, है ना, तुम लोग थोड़ा कर लो, टाइम नहीं हुआ है तो। इनका तो आईटीडी है, तुम्हारे फॉर्म में है तो गेट दे देना। नो, लॉजिक इज वेरी सिंपल। आरआर इज जस्ट एन इंटरमीडिएटरी अकाउंट। हमारा एसेट वैल्यू कितना था 1 लाख था, हमने पहले 20,000 किया, इसे 1,20,000 बना रही है, मतलब 20 इंक्रीज किया, 20 से 2 हमने ट्रांसफर किया कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और इट बिकम हाउ मच 18,000। दैट मीन्स जो हमने इंक्रीज किया उसको बेनिफिट पीएल में कितना गया, सिर्फ 2,000। अभी तक पीएल में बेनिफिट नहीं गया 18,000, बट ये सोल्ड हो गया 1 लाख से अबव में, 1,08,000 में ये सोल्ड हो गया। मतलब हमें बेनिफिट मिल गया, जो हम बोलते थे कि हमारा वैल्यू इंक्रीज हो गया है, वो एक्चुअली इंक्रीज हो गया। द वैल्यू वाज 1 लाख, इट हैज बीन इंक्रीज टू 1,20,000, फिर डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया, बट दैट मीन्स व्हाट एवर वी हैव एज्यूम, जितना हमने एज्यूम किया था कि हाँ हमें बेनिफिट होने वाला वो हो गया। एज पर प्रूडेंस प्रिंसिपल, अनलेस अंटिल वी रिकॉग्नाइज द बेनिफिट वी डोंट चार्ज टू पी&एल अकाउंट। अब यहाँ बेनिफिट मिल गया, मतलब 18 हमें कोई नहीं ले सकता हमसे। 18 को ले सकता है क्या, तो कैश में मिल गया, ये 18 इसके अंदर है इंक्लूडेड है,
क्योंकि एसेट्स का वैल्यू कुछ डिफरेंट था, हमने रीवैल्यू करके इसे 1,08,000 किया। तो GR इज व्हाट? GR इज जनरल रिजर्व विच इज अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर। RR इज नॉट अवेलेबल। कंपनी कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट एनी मनी आउट ऑफ RR। क्यों? RR अभी तक रियलाइज नहीं हुआ। अभी हम सिर्फ सोच रहे हैं, हाँ हमारा रीवैल्यू हो गया, हमें RR का प्रॉफिट है 20,000 तक, सोच रहे हैं सिर्फ। बट जब तक रियलाइज नहीं हो प्रूडेंस प्रिंसिपल, हम नहीं दे सकते। अब ये रियलाइज हो गया तो वो बोल रहे हैं ओके अब हो गया, अवेलेबल है तुम्हारे लिए, इसलिए ट्रांसफर कहां कर दो? जनरल रिजर्व। और जनरल रिजर्व इज अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर डिविडेंड टू शेयर होल्डर ऑल दोस। यहां से पैसा निकाल के हम शेयर होल्डर को दे सकते हैं। इसीलिए इसका एंट्री क्या हो गया? RR अकाउंट डेबिटेड टू जनरल। मतलब हम कंफर्म कि जितना हमने कहा था कि रीवैल्यू होने के बाद वो सारा वापिस आ गया। क्या करो? RR में ट्रांसफर, सॉरी GR में ट्रांसफर, जनरल। ठीक है, तो हम एक प्रॉब्लम इस पे करेंगे। चल सेम WDV रेशियो में, डिप्रिसिएशन के प्रोपोर्शन में, जितना एक्स्ट्रा डिप्रिसिएशन किया। तो बस 1 लाख होता तो 1 लाख का 25% लेट बी 25,000। अब ये 1,20,000 हो गया सपोज, तो 1,20,000 का 25% एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो प्रोपोर्शन एक्स्ट्रा हो गया, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा सेम प्रोपोर्शन में ही आएगा, या तुम सिर्फ एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो, ऐसा समझो। क्योंकि अगर WDV होता, मैं जस्ट बता रहा हूं, अगर WDV होता और रेट इज 25%, फर्स्ट ईयर होना चाहिए था 25,000, बट होगा कितना? कैलकुलेटर में जब मारो तो 1,12,000 का 25%, 28,000 आई थिंक, 28 ना। नेक्स्ट ईयर कितना होता जरा बताओ तो, अगर 1 लाख होता तो 75 का 25%, 18,715। मतलब ये प्रोपोर्शन जो चल रहा है इस प्रोपोर्शन में, इसका कितना आ रहा है? अगर 1,20,000 होता तो कितना? 30 कैसे हो सकता? 28 से लेस होना चाहिए ना। 28 इंटू 0.75 करो, 28,000 इंटू 0.75 करो, 21,000। हाँ, तो देखो ये जो एक्स्ट्रा आ रहा है ना, इसका प्रोपोर्शन जो है ना, इसकी प्रोपोर्शन उसी में आएगा तुम्हारा, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा एक्स्ट्रा रिवैल्यूएशन रिजर्व ट्रांसफर होगा। या होना चाहिए 25, हमने किया था 28 किया, या होना चाहिए था इतना, ये किया इतना, तो जो ये एक्स्ट्रा डिफरेंस आ रहा है ना, वो एक्चुअली चाहेगा तुम्हारा रिवैल्यूएशन रिजर्व इन प्रपोर्शन ऑफ डेप्रिसिएशन। तो यहाँ प्रोपोर्शन क्या था? 25:18.75 ऐसा प्रोपोर्शन है, बट प्रोपोर्शन चेंज कितना हो गया? 28:21 हो गया, तो प्रोपोर्शन चेंज हो रहा है ना, तो सेम प्रोपोर्शन में तुम्हारा आएगा, डोंट वरी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे WDV हो या SLM। हम कहाँ थे? क्वेश्चन में लास्ट क्लास क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था सर। क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया था, 6 भी हो गया था, 3 4 अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 4 कर लो, प्लीज डू इट। क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई टू डू इट। क्वेश्चन नंबर 4 आंसर मैं बोलता हूँ, प्लीज डू इट। क्वेश्चन नंबर 4।
So I repeat again. The company should pass bank account debited 100, RR account 150 to SS 250, adjusting loss on sale against RR, and the balance of RR, that is 200 minus 50, is transferred to general reserve account. Here wrong company did RR account debited 200, profit and loss account debited 200. एक wrong किया. Second wrong इन्होंने क्या किया? Loss on sale of assets was included in cost of goods. लॉस ऑन सेल सर हमारा डेबिट कितना हुआ था 150. इसको उन्होंने कहां ट्रांसफर कर दिया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. मतलब एंट्री उन्होंने पास किया होगा COGS अकाउंट डेबिटेड टू लॉस ऑन सेल. कितना? 150. ये दूसरा रॉन्ग एंट्री. दैट मीन्स हमें करेक्ट क्या क्या करना है सर? हमें COGS को करेक्ट करना है. ये सारा इन्होंने किया है, हमें इन सबको करेक्ट करना है. GR को 50 करना है, जिन्होंने नहीं किया. देखो क्या क्या हो रहा है. Have you understood this wrong entry? The effect of this wrong entry is that there is no balance of RR in books. RR 0 हो गया. और हमारे केस में भी सर RR 0 होता. अगर राइट एंट्री पास करते तो भी 0 होता. इन्होंने भी 0 किया. चलो इनका भी करेक्ट, हमारा भी करेक्ट. RR में हमें कुछ अब करना नहीं. इन्होंने COGS डेबिट किया 150. हमारा COGS कितना होता? 0. इनका कितना हो गया COGS? 150 डेबिट है सर, जो कि रॉन्ग है. एड करना चाहिए. और इन्होंने रॉन्ग किया क्या है सर? हमारा GR कितना आता? 50 क्रेडिट होता. इन्होंने 50 क्रेडिट नहीं किया. इन्होंने GR कितना किया? 0 किया. दैट मीन्स RR ठीक है सर, बट GR में रॉन्ग है, COGS में रॉन्ग है. मैंने जो 150 इन्होंने डेबिट किया, हमें क्या करना चाहिए था? 0 करना चाहिए था. तो अगर मैं इसको रेक्टिफाई करना है तो मुझे COGS को क्या करना है? क्रेडिट करना. मेरा GR 50 क्रेडिट होना चाहिए था, इन्होंने क्या किया? 0 किया. मतलब मुझे क्रेडिट करना. तो दो चीज मुझे मिल गया. अगर मैं बोलूं रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगा? रेक्टिफिकेशन तो रेक्टिफिकेशन क्या होगा सर? GR क्रेडिट होना चाहिए. GR अकाउंट टू GR अकाउंट होना चाहिए कितना? 50. अंडरस्टूड सर? GR 50 शुड बी क्रेडिटेड होना चाहिए. इन्होंने क्या किया? 0. तो 2 GR अकाउंट शुड बी 50. COGS अकाउंट डेबिटेड 150 होना क्या चाहिए था? 0. 0 होना चाहिए था. तो रेक्टिफाई कैसे करेंगे? क्रेडिट करके. तो कहना इसे 2 COGS अकाउंट कितना? 150. अब और एक चीज देखो सर, लॉस ऑन सेल हमारे बुक्स में कितना है? 0 है. यहां कैंसिल हो गया ना. लॉस ऑन सेल के बाद कैंसिल हो गया, 0 हो गया. इनका कितना आ रहा है देखो? 150 अभी भी क्रेडिट में है. अभी भी क्रेडिट में है, कहीं ट्रांसफर नहीं है, स्टिल इन क्रेडिट. तो लॉस ऑन सेल सर ये इनका कितना है? 150 क्रेडिट. लॉस ऑन सेल 150 क्रेडिट. हाँ तुम अगर ये एज्यूम करो कि सर हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि ये PL में ट्रांसफर हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड लॉस ऑन सेल. बट लॉस ऑन सेल तो यहाँ, अच्छा इन्होंने एक मिनट लॉस ऑन सेल 0 है इनका भी. क्यों? क्योंकि इन्होंने भी एक एंट्री पास किया होगा, एसेट वाला एंट्री, मतलब बैंक अकाउंट डेबिटेड. इन्होंने भी किया होगा ना. बैंक अकाउंट डेबिटेड कितना? 100. लॉस ऑन सेल कितना आ रहा था हमारा? 150 टू एसेट 250. इन्होंने भी किया होगा ये. तो इनका भी 0 हो गया ना. यहाँ लॉस ऑन सेल डेबिट और लॉस ऑन सेल COGS को ट्रांसफर. तो इनका भी 0 हो गया. इनका भी 0 है. सॉरी, लॉस ऑन सेल से कुछ नहीं करेंगे. अरे इन्होंने लॉस ऑन सेल आया कहां से? दे वुड हैव पास दिस एंट्री.
1 2 3, इसको 3 इसको 3 नहीं, एक्चुअली ये होना चाहिए था, ये 1 होना चाहिए था, देन 2 3, तो मैं इसको चेंज करता हूँ, ये 1 ये 2 ये 3, ठीक है। दिस वुड हैव पास बैंक अकाउंट डेबिटेड, loss on sale 152 assets, therefore 150 having a loss has been transferred to COGS, cost of goods sold. That means इनका भी loss on sale डेबिट 150 क्रेडिट 150, तो ये कैंसिल हो गया, इनका भी जीरो, आरआर जीरो हो गया, हमारा भी जीरो है, तो एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और कुछ एक्स्ट्रा है क्या हमारा इसमें, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, इन्होंने आरआर को सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर किया ना, क्वेश्चन बोल रहे हैं ना, द प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स विल बी 200 लाख सोन इन प्रॉफिट एंड लॉस, तो कैन वी से रेक्टिफिकेशन में क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड 200, जैसे ही ना, यहां पर देखो, यहां क्या हो रहा है, आरआर टू प्रॉफिट एंड लॉस क्या रहा होगा ना, इसको रेक्टिफाई करेंगे, बट आरआर तो जीरो ही करना था हमेशा, आरआर जीरो ही करना, तो जो 200 है, या तो इसको मैं और एंट्री पास करके रिवर्स करता, या मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड 200, जो हमने क्रिएट किया आरआर को, अब आरआर तो जीरो करना था, रहने तो जीरो हो गया, तो पीएल को हम डेबिट कर देते 200, क्रेडिट क्या करना है, जीआर 50 एंड सीओजीएस अकाउंट 150, दिस इज व्हाट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मतलब जीआर में सिर्फ 50 होना चाहिए था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो गलती से डेबिट हो गया 150, और जो आरआर अकाउंट ट्रांसफर हो गया पीएल अकाउंट में क्रेडिट हो गया, अभी हम उसको ठीक कर, थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, बट ये प्रॉब्लम समझोगे तो जो तुमने नहीं लिखा, यू प्लीज राइट इट डाउन एवरीथिंग, दिस इज योर रॉन्ग, ये राइट सब लिखो, देन इफ फ्यूचर, क्योंकि तुम्हारा ये बिगिनिंग है, स्लोली स्लोली व्हेन यू विल डेवलप यू विल अंडरस्टैंड, और ज्यादा से ये प्रॉब्लम मुझे लगता है कि मुझे आज तुम्हें नहीं करवाना चाहिए था, तुम्हारे लिए थोड़ा ये हाई लेवल का हो गया मुझे लग रहा है। 10 मिनट रही पड़ी होगी, 10 मिनट रही पड़ी होता, तुम कथा बताइए तुम संग, ठीक है, तुम ये चेयर टेपर ऐसे लो, क्लास इज ओवर, इसमें कोई डाउट है तो मुझे बताओ, दिस क्वेश्चन, ये चेयर टेपर कर दो, ये चेयर Those who are new, please take a 10 minutes. जो लास्ट क्लास में नहीं थे प्लीज 10 मिनट, कोई काम है तो, जॉब में हो, आर्टिकलशिप है नहीं ना, हाँ तो वेट करो, जिनका आर्टिकलशिप वो जा सकते हैं, और जो पुराने हैं वो जा सकते हैं, जो नए हैं उनसे थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ।